Child abduction is child abuse. There's immense literature written about it. You can find so many scholarly articles on it, judgments, Supreme Court judgments, where child abduction is considered the most serious kind of abuse that you can subject a child to. बहुत केसेस है जो रिपोर्ट ही नहीं होते, पता ही नहीं चलता, बिकॉज पीपल डोंट नो देयर राइट्स. कई बार तो ऐसे होता है ना, यहीं से नहीं पता होता कि एकदम से उठाया बच्चा और चले गए. अभी यूएसए में कोई एग्जिट कंट्रोल्स नहीं है, एनीबडी कैन लीव. सबसे मेन बात है कि हाउ क्विकली यू एक्ट. जितना आप टाइम ज्यादा लेते हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग मंथ्स, आई एम टॉकिंग डेज. तो इंडिया में जैसे ऐसे पैकेज चलता है कि डाउरी 498 भी लगा दिया, डीवी भी लगा दिया, 125 भी लगा दिया, मेंटेनेंस भी लगा दिया. हाउ इज इट इन यूएस? मतलब कैसे होता है वहां पे? इन मोस्ट डेवलप्ड लीगल सिस्टम्स इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन फॉर इंटरनेशनल पेरेंटल चाइल्ड अबडक्शन. इट हर्ट्स माय हार्ट. कई बार मैं एग्जांपल्स देखती हूँ कि मुझसे ऊंचे से बोल दिया, या लाइक यू नो दिस नथिंग concrete there at all. और अगर गलती से sexual abuse allegations बाप पे लग चुके हैं, to answer your question, yes, men suffer more. So one of the most cautious things that the parents should keep in mind is... Hello and welcome to yet another very, very informative and knowledgeable series on my YouTube channel, Deepika, Narayan, Bhardwaj. We bring to you people who have fought their own cases, and won. We have brought to you counsels who have fought with a lot of passion for people who have been falsely accused. And we try and bring guests, listening to whom you can get to know a lot about the legal battles that you're facing in life. Today, I have a very, very special guest. Although the issue that we are going to be discussing today is not even known to a lot of people, but it is impacting a lot of lives. It is called International Parental Child Abduction. Those of you who are familiar with the concept of parental alienation will probably get to understand this better, because this is just parental alienation where two people are separated with the boundaries of two countries. And things become even more complicated than when children are suffering between parents who stay in the same country. So today I am going to be joined by a very, very special guest who is Stutee Nag. Let me just share about her. Stutee is an international family law attorney, licensed to practice law in India and the state of New York, handles international child custody and divorce matters, has testified as an international family law expert before US courts, has written extensively on international family law issues concerning India and the US. Stutee is a fellow of NYSBA Family Law Section for 24-25. Her articles have been published in very, very reputed journals and also in legal portals in India. And that's how I actually came to know about her. I love getting people on my show who are balanced, neutral, rational, and do not look at gender issues with a very, very skewed lens. And Stutee is one of those people. It is my pleasure to have her on my show today. And let me invite Stutee. Stutee, thank you so much for taking out time today. Thank you, Deepika. Thank you for having me. I'm absolutely honored, to say the least. I've heard so much about your work off late, and it is a coincidence that after you reached out to me, some of my clients have, in fact, pointedly told me that how much they respect the kind of work that you're doing, and I must say that you're doing tremendously. It's an absolute privilege for me to be here. Thank you so much, Stutee. We are going to be talking about something that is impacting lives of a lot of people, and it's increasing. Although the numbers may appear small to some people, but my work entirely revolves around that every life matters. And numbers are not how you gauge human issues. So to begin with, Stutee, let's understand what really is international parental child abduction. What are the numbers that we're talking about, and who does this majorly impact? Although numbers, like I said, do not really make a difference, but who is kind of prone more to be impacted by IPCA? So, Deepika, broadly, in a very lay language, अगर मैं बताऊं, IPCA is when one of the parents will remove or wrongfully retain a child in another country which is different from their habitual residence.
होता क्या है, दो पेरेंट्स एक कंट्री में रहते हैं अपने बच्चे के साथ, काफी सालों से वहां रह रहे होते हैं, their marriage deteriorates, the relationship dissolves, whatever happens. One of them unilaterally, without the consent or knowledge of the other parent, or without the permission of the court in that country, decides to come back to their home country, wherever they are from. Now in most cases, जहां पे जिन countries ने, and we will get into it later, जिन countries ने Hague Abduction Convention नहीं साइन करी है, उनके लिए, वहां के couples के लिए ये एक बहुत major issue है, क्योंकि one of the parents is continuing to stay in a country like the US, which is a, I must say, like primary upholders of the treaty. IPCA is a big issue here, and उसका logic अगर मैं बताऊं तो ये है कि लेट्स कंपेयर, अगर इंडिया और अमेरिका को कंपेयर करें, इंडिया वो कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में लोग बाहर निकल के विदेशों में बसते हैं। अमेरिका वो कंट्री है जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं बाहर दूसरे देशों से आके रहने। सो देयर इज अ ऑर्गेनिक टसल बिटवीन द लीगल सिस्टम्स ऑफ द टू कंट्रीज। आईपीसीए क्राइम है, बहुत सीरियस नेचर का क्राइम माना जाता है अमेरिका में, इंडिया में इट इज नॉट कंसिडर्ड अ क्राइम। तो जो ये टसल है ये हमेशा रहेगी जब तक इंडिया हेग कन्वेंशन साइन नहीं करता। और इसकी वजह से जो प्राइमरीली, आई वोंट से सभी लेफ्ट बिहाइंड फादर्स होते हैं, ऐसा नहीं है, बट प्राइमरीली जो इससे इफेक्ट होते हैं वो फादर्स है। नंबर स्टेटिस्टिक्स वाइज यस, इट्स प्राइमरीली फादर्स, बट इन माय एक्सपीरियंस, इन माय प्रैक्टिस, मैंने बहुत मदर्स के साथ कंसल्ट किया है, बहुत मदर्स की प्रिवेंशन बचाई है। लाइक दे डोंट वांट कि उनका बच्चा इंडिया वापस जाए जब उन्होंने इतने साल अपनी जिंदगी के अमेरिका में दे दिए हैं। एंड लेट मी, लाइक if I were to explain the difference, जब ये Hague Abduction Convention आई थी ना पिक्चर में, that was late 90, like 80s 90s, तब Yes. तब इंडियन वाइफ का ना स्टेटस ही कुछ और था। अरेंज मैरिजेस होती थी, वो एक एज अ टैग अलोंग स्पाउस अमेरिका आती थी। her educational skills, her language skills did not necessarily translate into a foreign setup. वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी, एक कल्चरल शॉक होता था, फ्रेंड्स नहीं, फैमिली नहीं, और सबसे मेन बात अरेंज मैरिज, तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जानते नहीं थे, और उसके बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो जाते थे वाइफ के आगे टू कंटिन्यू टू लिव देयर, स्पेशली देयर वाज नो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कट टू 2024, things have changed tremendously. Couples not only court properly before getting married, they know each other fully well, they make the conscious choice and a decision to come to a country like the US, they fight tooth and nail. मैं तुम्हें क्या बताऊं, इमिग्रेशन बहुत, यहाँ पे आके इतने लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, यू हैव टू टेक मैसिव एजुकेशन लोन्स, अपनी एक लाइफ बनाते हो, रियल एस्टेट गैदर करते हो, टैक्सेस भरते हो, बच्चे पैदा करते हो, प्रॉपर्टी क्रिएट करते हो, सब कुछ करते हो। उसके बाद अब ये वो सिचुएशन रही नहीं है जहां 1980s में ना वाइफ को ना तो हिम्मत थी, ना साधन थे, और ना ही ज्ञान था कि वो कैसे अपने राइट्स के लिए लड़े। अभी क्या है, दे आर इक्वल पार्टनर्स, wife is equally financially capable of fighting her legal battles here, and she deserves, like, it's not about deserves to know, she wants to know what she's entitled to here. तो उस वजह से ना अभी हेग कन्वेंशन ना साइन करना, इंडिया, आई डोंट नो व्हाई इंडिया इज डूइंग दैट, बट अभी वो रीजंस रहे नहीं है। और फादर्स जो है वो बहुत ज्यादा इस मामले में प्रताड़ित रहते हैं, क्योंकि जब एक रिलेशनशिप डिसॉल्व होता है, और फर्स्ट थिंग यू डू इज यू गो ऑन गूगल एंड यू से आई वांट टू रिटर्न, कैन आई डू दैट? नाउ एज सुन एज यू पुट दैट इन, आप इंडिया की जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स है उसमें आप देख लेते हैं कि आईपीसीए इंडिया में क्राइम नहीं है। दिस प्रोवाइड्स यू अ वेरी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप सोचते हो कि वहां तो मैं तो कोई क्राइम कर ही नहीं रही, आई कैन गो, विच इज ट्रू, आप इंडिया जा सकते हो, लेकिन अमेरिका में तो बहुत सीरियस क्राइम है ना। Not only does it, child abduction is child abuse, there's immense literature written about it, puri matlab you can find so many scholarly articles on it, judgments, supreme court judgments, where child abduction is considered the most serious kind of abuse that you can subject a child to. But मेरा मुद्दा ये है दीपिका कि औरत भी फायदे में नहीं रहती है ये करके। Like if she goes back, अपने बहुत फाइनेंशियल क्लेम्स वो लेट गो करती है,
एक और बहुत मेजर रीजन रहता है कि वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की तरह उसके बाद कर सकते हैं। अगर हस्बैंड डिसाइड करे कि वो क्रिमिनल केसेस इनिशिएट करेंगे वाइफ के अगेंस्ट, without any fault of hers, suddenly she's going to become like a proclaimed offender. So, and I know that we are going to get into all of this in much detail, but अगर एक औरत को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कि they want to return, abduction is not the only solution. There are other solutions. So like that's the only thing. And to answer your question, yes, men suffer more. Yeah. So what I know the numbers are less, Stutee, but is there any data available on how many cases happen over in a year or over the last 10 years? What are the numbers that we're looking at? Yeah, so specifically speaking about India, 2023 की जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट हर बार यूएस सेंट्रल अथॉरिटी निकालती है, और जो लेटेस्ट है दैट इज 2023, तो उसमें 100+ केसेस थे। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि नॉट ऑल केसेस आर रिपोर्टेड। नंबर वन, ऐसा नहीं है कि हर अबडक्शन कोर्ट तक पहुंच रही है तो स्टेट डिपार्टमेंट को पता चल रहा है। बहुत केसेस है जो रिपोर्ट ही नहीं होते, पता ही नहीं चलता, बिकॉज पीपल डोंट नो देयर राइट्स। सेकेंडली क्या है कि बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो where the parent is able to nip it in the bud, in the sense कि वो प्रिवेंट ही कर देते हैं ना, होने ही नहीं देते, तो वो केसेस तो कहीं गिनती में ही नहीं आ रहे। एंड देयर इज आल्सो अ थर्ड कैटेगरी जहां हस्बैंड एंड वाइफ इतने समझदार हैं दैट दे फिगर आउट कि शादी खत्म हो गई तो हो गई, हाउ डू वी सॉर्ट दिस मेस आउट नाउ, एंड पीपल आर वेरी स्मार्ट नाउ। लाइक ये बहुत ज्यादा एक कंटेंशियस इशू बन गया है बिकॉज ऑफ, आई डोंट वांट टू से लैक ऑफ लाइक, जब हमें किसी चीज का पूरा ज्ञान नहीं रहता है तो हम थोड़ा डरते हैं उसमें स्टेप करने के लिए, कि हम शुड वी टेक द स्टेप और नॉट। तो उस वजह से वो जो इतना बड़ा इशू बनना नहीं चाहिए वो बनता जा रहा है। बट स्टेटिस्टिकली 100 से ज्यादा केसेस 2023 में रिपोर्ट हुए, लेकिन असली नंबर बहुत ज्यादा है। मतलब आई कांट गिव यू अ नंबर ऑफ कोर्स, बट आई नो फ्रॉम माय ओन प्रैक्टिस कि इससे बहुत ज्यादा केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, और ऑल्सो जो प्रिवेंट कर दिए जाते हैं, जो अबडक्शन में अमाउंट ही नहीं होते। All right, fair enough. And this is just with regard to India. Okay. Yeah. Yeah, that's actually a very, very interesting point to discuss. How many countries, let's not go into the numbers, but any examples, Stutee, where there was a very, very serious, stringent action taken against somebody who abducted the child away from US and went into a country which was a signatory to Hague, and what were the aftermaths in those cases? So the countries who are signatories to the Hague are more than 100 in number. Not all of them have a great track record of returning abducted children, but let's speak about the countries jahan Indians जाते हैं। Primarily जो टॉप 10 कंट्रीज है ना, 9, दीपिका, 9-10, उन 10 में से 9 कंट्रीज हेग सिग्नेटरीज हैं मिडिल ईस्ट को छोड़ के। सो यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड्स, अमेरिका ऑफ कोर्स, स्पेन, ये सारी जो कंट्रीज जो टॉप 10 में आती रहती है कि यही इंडियंस जाते हैं, उनमें से 9 कंट्रीज आर वेरी गुड। they're known to be steadfast treaty partners. they're not considered non compliant. साइन करके वो बच्चा रिटर्न भी करते हैं। तो वहां पे क्या है कि स्ट्रिंजेंट मेजर्स देखो लेने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हेग का एक बात है कि it's not like a regular custody trial at all. First of all, it is not a custody trial. All that Hague is saying is कि बच्चे को उसके habitual residence वाली country में return किया जाए ताकि वहां का कोर्ट best interest of the child पे निर्धारित करे कि बच्चा किसके पास जाएगा, माँ के पास या बाप के पास। तो ये जो ट्रायल्स है ना, ये बहुत फास्ट होते हैं। दे आर मैंडेटेड टू बी डन विद इन 6 weeks. तो लेट्स से एक मदर अपने बच्चे को यूएसए से इंग्लैंड ले जाती हैं, तो बहुत फास्ट करा जाएगा कि वहां पे ट्रायल हो। और इंग्लैंड विल, there are certain exceptions to it, and I'll get into those when we discuss domestic violence. But अगर वो exceptions नहीं apply करते हैं, and also those exceptions are not to be implemented very broadly. The idea is to return the child, so they're kind of limited exceptions. तो अगर उनमें से कोई भी एक्सेप्शन नहीं अप्लाई होता है तो चाइल्ड इज ऑर्डर टू बी रिटर्न टू द कंट्री ऑफ द हैबिचुअल रेजिडेंस। इट इज अप टू द पेरेंट देन कि वो क्रिमिनल चार्जेस मदर के अगेंस्ट करना चाहते हैं कि नहीं। यूजुअली वी एडवाइज अगेंस्ट इट,
क्योंकि whether it is a Hague signatory, whether it is not a Hague signatory, no court will feel comfortable sending a mother to a place where they know that as soon as she's going to land, she might be arrested. So most of the knowledgeable attorneys about it advice against it कि आप क्रिमिनल एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि एक बार ये बात स्टेट के पास चली गई, देन इट इज नॉट अप टू यू टू देन इवन रिट्रैक्ट इट. तो स्ट्रिंजेंट मेजर नंबर 1 इज कि बच्चे को इमीडिएटली रिटर्न ऑर्डर करते हैं, और जो कंट्रीज कंप्लायंट हैं दे विल विद इन लेस देन अ ईयर बच्चा वापस आ जाता है. उसके बाद अभी लेट्स से कोई यूके से अगर अमेरिका में बच्चा अबडक्ट हुआ है, तो one of the most cautious things that the parents should keep in mind is कि अगर जो टेकिंग पेरेंट है वो केस हार जाए, तो जो लेफ्ट बिहाइंड पेरेंट है वो अपनी सारी लीगल कॉस्ट टेकिंग पेरेंट से रिकवर कर सकता है. सो आई एम टॉकिंग hundreds of thousands of dollars. So this is another thing, like not just criminal, but financially it can break your back. But this is only true with respect to US, not other countries. All right. Yeah. Particularly talking about Indian situations, Stutee, what are the loopholes because of which the left behind parents, especially in the state of in US, are feeling totally helpless? How bad is the situation? Do they see no hope? How tiring can the litigation be? I almost like I can't tell you how pathetic the situation is. This is, you know, you have to when a parent unilaterally takes. Feel free to share any instances without taking the names, but any cases that you're doing right now, or just to quote an example. Without obviously names and parties, all that I can't disclose, but there are cases where you know एक बच्चे को ले जाया गया इंडिया, फिर वहां पे इन यूएसए में खुद पहले मदर ने केस स्टार्ट किया, कस्टडी और डिवोर्स वो चल रहा था, खुद मदर ने स्टार्ट किया है, वो केस चल रहा था. फिर वो परमिशन लेके इंडिया आती हैं ये कह के कि मुझे अपने फादर से मिलना है या समथिंग लाइक दैट. एक बार आती हैं और फिर वापस चले जाती हैं अमेरिका. सेकंड परमिशन दोबारा से मांगती है, केस अभी भी चल रहा है कस्टडी और वो, और वहां पे उन्होंने फादर के अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज एलिगेशंस लगाए हुए हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एलिगेशंस यूएसए में, जो अनफाउंडेड है, अनसब्सटैंशिएटेड, दे वर नेवर प्रूवन. कोर्ट की परमिशन से वो वापस जाती है और जाते ही साथ के साथ यहाँ कस्टडी ट्रायल स्टार्ट कर देती है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ना कोई रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप फैक्ट्स क्रिएट कर सकते हो तो आप ओवरनाइट जाके इंडिया में बोल सकते हो कि मेरा बच्चा यहाँ ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, कस्टडी डिसाइड करो. इन खुद न्यूयॉर्क का केस चलाया, वहां पे एक डीसीपीपी मतलब चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के पास जाके एक झूठा सेक्सुअल अब्यूज का केस लगाया. दोनों में देन शी सॉ कि एक तो अनफाउंडेड हो गया और दूसरा उनके हिसाब से नहीं जा रहा था. शी वाज़न्ट गेटिंग सोल कस्टडी व्हिच इज नॉट द नॉर्म हियर. यहाँ दोनों माँ और बाप का 50% अधिकार है बच्चे पे. आप until and unless there are grave circumstances आप वो अधिकार नहीं छीन सकते. वापस आए और यहाँ कस्टडी इंडिया में स्टार्ट कर दिया. हस्बैंड को पता ही नहीं है कि वहां पे कस्टडी केस स्टार्ट हो गया. ही इज थिंकिंग कि अभी ये वापस आएंगी. 3 साल हो गए आई थिंक उस केस को, और वो हस्बैंड उसके बाद उन्होंने हेबस कॉर्पस किया, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, पर नहीं जीते. इवेंचुअली अभी वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, और 3 साल में उन्होंने एक बार अपने बच्चे से मिले, और वो भी जो एक बार मिले हैं कोर्ट के एटमॉस्फेयर में बच्चा टोटली एलिनेट कर दिया गया. ब्रेन वॉश्ड है बच्चा, उस टाइम पे वो मिलना नहीं चाह रहा, और दैट्स इट. 3 साल में एक बार बच्चे को मिला, और अभी भी कोई होप नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने हेबस कॉर्पस तो डिनाई कर ही दिए, और आपको भी पता है कि कस्टडी ट्रायल इन इंडिया forever it'll take. By that time बच्चा इतना brain wash हो जाता है, he doesn't want to take the look at the other parent. It's very very common, and it's not just one case by the way. ऐसे बहुत cases हैं. What are the challenges that left behind parents have to commonly deal with in India, and what are the legal loopholes that a parent who would have abducted the child from US would exploit here in India, in your opinion? What have you seen? डाउरी हरासमेंट का केस, डीवी वायलेंस, ये तो मतलब दे कम इन अ पैकेज यार. मतलब अभी पहुंचे नहीं और आते ही आपने ये एक बंडल चार्ज कर दिया उसके अगेंस्ट, और उसका पर्पस मेनली है
कि जो लेफ्ट बिहाइंड पेरेंट है वो इंडिया की सॉइल पे बस कदम ना रख पाए. दैट्स द मेन रीजन. अब आप तो इंडिया में रह रहे हो, रिमोटली मुझे बताओ आप कितना ये केसेस हैंडल कर सकते हो जब आपको पता है कि आप वहां जा नहीं सकते. अच्छा, फिर एक तरफ ये सारे केसेस हैं, दूसरी तरफ से एक ऑर्डर इशू करवाने की कोशिश होती है कि उसकी पर्सनल अपेयरेंस को फोर्स किया जाता है ताकि वो ना आ पाए और कंटेम्प्ट इशू हो जाए. तो ये ना मतलब एक बड़ी सोची समझी भेड़ चाल सी बन गई है. एंड आप ये जो जेंडर स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं, ये सबसे बड़ा लूप होल है. अगर आप कहे जो अगर अगर एक माँ है जो बच्चे को ले गई है, तो एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर माँ ये करती है, कुछ माएँ करेंगी. और उसमें ना बहुत बार क्या होता है कि ये एक लीगल सेटअप सा बन गया है कि अच्छा, आपकी शादी खराब थी, नहीं चली तो चलो. उसमें एक फैक्टर तो आई थिंक बहुत बड़ा ये है, एंड आई एम सो अनॉयड अबाउट इट, कि हर बार इंडिया में आपको ग्राउंड चाहिए डिवोर्स के लिए. अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, तो वो जो लाइन से 4-6 ग्राउंड है जिसमें क्रुएल्टी सबसे ज्यादा साइट करते हैं, तो अगर कोई ना भी चाहे ना उस सब में पढ़ना, दे हैव टू, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट तो हो नहीं रहा. अब क्रुएल्टी में क्या ही मतलब कुछ भी क्रुएल्टी में तो मतलब कई बार मैं एग्जांपल्स देती हूँ कि मुझसे ऊंचे से बोल दिया, या लाइक दिस नथिंग कॉन्क्रीट देयर एट ऑल, लेकिन एफआईआर दर्ज हो रही है और क्रुएल्टी एक ग्राउंड बन रहा है. तो सबसे ज्यादा जेंडर स्पेसिफिक ऑफेंसेस की वजह से लेफ्ट बिहाइंड पेरेंट को बहुत ज्यादा डील करना पड़ता है इश्यूज के साथ. दूसरा इशू मैं कहूंगी, कोई सेट फॉर्मेट नहीं है. तो जब एक लेफ्ट बिहाइंड पेरेंट को पता चलता है कि उसका बच्चा वापस नहीं आ रहा, या कई बार तो ऐसे होता है ना, यहीं से नहीं पता होता कि एकदम से उठाया बच्चा और चले गए. अभी यूएसए में कोई एग्जिट कंट्रोल्स नहीं है, एनीबडी कैन लीव. कोई आपसे क्वेश्चन, वो आने में क्वेश्चंस करते हैं, जाने में तो बहुत खुश है कि जल्दी जाओ, ठीक है. तो कोई भी चले जाता है. अब जब पेरेंट को पता चलता है, ही डजंट नो व्हाट टू डू, हेग है नहीं, तो अब क्या करे. वो 4 जगह वकीलों से पूछेंगे. इट्स नॉट अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस एरिया. वकीलों को खुद को इतना नहीं पता, मतलब इट्स नॉट until and unless it is one of the select few attorneys that are doing it, not everybody knows what it is. तो हेबिस कॉपस तक जो एक टिपिकल साधन है कि हाई कोर्ट में जाके आप हेबिस कॉपस फाइल करते हैं, बहुत उसमें फैक्टर्स हैं जो उनके अगेंस्ट जा सकते हैं. इट्स नॉट एन इजी पिटिशन टू फाइल कि कोर्ट उसको इवन एंटरटेन भी नहीं करे. बहुत बार ऐसे होता है, कोर्ट कह देते हैं कि भाई आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ जहां बच्चा रहता है, वहां कस्टडी का फाइल करो, वी आर नॉट एंटरटेनिंग. वो इसके लिए तो आपको सबसे मेन बात है कि हाउ क्विकली यू एक्ट. जितना आप टाइम ज्यादा लेते हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग मंथ्स, आई एम टॉकिंग डेज. आप 15 से 20 दिन से ऊपर हो गया और आप यही भेड़ चाल में लगे रहे कि अब इंडियंस है ना, उनको 4 वकीलों से पूछेंगे नहीं तब तक दे डोंट फील कि अच्छा वो आया है. तो उसमें कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन आ जाता है, बहुत कुछ होता है, वैल्यूबल टाइम इज लॉस्ट. एंड अगर ले जाने वाली माँ है, अगर ले जाया गया बच्चा एक लड़की है, और अगर गलती से सेक्सुअल अब्यूज एलिगेशंस बाप पे लग चुके हैं with respect to the child, whether they are substantiated, whether they are unfounded, doesn't matter. The fact that there is a complaint कि देखो, एक ना प्रिंट आउट ले जाएंगे कि डीसीपीपी के आगे हमने ये कंप्लेन करी थी, किसी को नहीं पड़ी कि वो कंप्लेन सच प्रूव हुई थी कि नहीं हुई थी. जस्ट द कॉपी ऑफ दैट इज सफिशिएंट कि आप 498 ये सब तो करो, डाउरी हरासमेंट एंड ऑल दैट, लेकिन उसके अलावा बहुत जल्दी से आपको सिंपैथी मिल जाती है, एक जो कि गलत है. अगर वो कसूर माना ही नहीं गया है, तो आप सिर्फ जस्ट बिकॉज यू मेड दोज एलिगेशंस यू कांट देन कीप, बट दैट हैपेंस ऑल द टाइम. Yeah, I just before we got on this interview, I shared a story. There's a research that a journalist has done who works with Dainik Bhaskar in Madhya Pradesh. भोपाल का उन्होंने 100 cases study किया. So the latest trend in India, which I think is the lowest that someone can stoop, is false allegations of rape on elderly father-in-law, brother-in-law, right? So they looked at 100 such cases that have been filed in the last 1 year in Bhopal, and 50% of them were found to be utterly false. I personally feel 99% of these cases are false. And these are being filed just to get the husband or his family arrested. So because of Arnesh Kumar judgment, now there's no arrest happening in 498A. So this is the tod that advocates have found, and
women are Because yeah. becoming a party to it. So it is just, I shared this story, we were reporting it, and I shared that, women cannot lie about rape is now more of myth than a reality. I mean, we are seeing POXO cases being filed in custody disputes, and I It's don't think so normal. there is Yeah. anything more damaging than being falsely accused of, harming your own child, and that too sexually. I mean, अरे उसमें ये भी तो सोचो ना, जब फिर आपको अपने when you are tutoring your child to say certain things, what impact are you causing on that poor little soul who has no idea? Like, I am actually dealing with a case where the mother has gone to nasty extents, and बच्चा जो है ना वो बहुत छोटी उम्र का है, तो मुझे बार बार बस एक बात लगती है कि वी ऑल नो, जजेस, डीसीपीपी, सबको पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन बच्चे के मानस पटल पे उसका क्या असर पड़ रहा है, आई डोंट थिंक एनीबडी, लाइक हाउ इज दैट मदर फिट टू बी अ मदर जो अपने बच्चे को वो सब सिखा रही है कि आपको जाके ये बोलना है साइकेट्रिस्ट के सामने, तो और जो बच्चे की द टर्म्स दैट द किड इज यूजिंग, no 5 year old 4 year old would use those terms, so wahi se, like, something, I don't have to be a psychologist or, like, an expert in that field to figure out. I'm a mother myself, so it's just very very common. It's a pathetic is what I'll say. I very often would write about 498A, legal terrorism, all that. Many times I would like specifically Indian publishers would be reluctant to publish it because there's a certain undertone to it. आपकी जब मैंने वीडियो देखी 498A के ऊपर, बहुत चीजें तो मुझे भी नहीं पता, आई डिडंट नो कि इतने छोटे बच्चों को भी एज एन अक्यूज्ड वो मतलब दैट वाज, आई हैड गूज बम्प्स व्हेन आई थॉट कि एक इतनी छोटी उम्र के बच्चे को भी आप एज एन अक्यूज डाल रहे हो उसमें, तो दैट ऑल्सो put a stamp on what I'd been thinking all these years. And I sometimes thought that maybe I'm being too harsh on the system by writing all this. And, maybe I should dial it down. But I don't think I'm harsh enough because जो facts आपने अपनी documentary में रखे, उसके बाद तो my thought, like, it's, I'm completely convinced that I wasn't wrong. I don't even think that there is absolute documentation of the havoc that is being unleashed in families. I think we are all still in undertones, including me when I'm such a ferocious activist. But the kind of trauma that people are going through, it is just unbelievable, Stuti. And we'll be releasing that episode soon. We have interviewed a father who just got acquitted in a false POXO case where the woman had accused him of sexually abusing his son inside the court premises when the visitation is happening in between in the court premises. So she says that he sexually abused his own son in the court premises, and then he had to undergo that trial for 3 years, and it is very devastating. Um, um, let's understand. Law Commission of India in 218th report had very categorically said, Shruti, that India should be a signatory to Hague. No. It said it shouldn't be a signature. 2018 was that it shouldn't be. Somewhere in 2009 or 8, it was under Justice A.R. Lakshmanan. That's when they had said that they Yes. should be. Yeah. I read that one. Yeah. So I think later on 2018, probably, yes, you're right, absolutely. I think that time there was a lot of feminist, I would call them feminists and women's right activists intervention. And then they said that, these women are victims of domestic violence and they're fleeing the country because of the domestic violence perpetrated on them. So I wanted to ask you, Stuti, you are there in USA right now. You are seeing family disputes day in, day out. How much of a problem is domestic violence in these cases, and how much of charges are actually cooked up? I have honestly absolutely no way of saying how much substance there is to it when somebody claims that they're being subjected to domestic violence. It is a global issue, not just for NRI women. हर कहीं हर देश में हर कोई इससे जूझ रहा है. तो I wouldn't know कि उसमें सच और झूठ कितना है, but what I do know for a fact is there is plenty and plenty of help available here. They have a lot of recourses.
ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कोर्ट सिस्टम या अमेरिकन पुलिस उनके अगेंस्ट बायस्ड है, उनको हेल्प नहीं करना चाह रही, या व्हाट आर द मेजर्स दैट दे कैन टेक। अगर वो खुद भी दे डोंट फील कि वो इतने केपेबल हैं कि वो खुद जाके पुलिस से बात करें या कोर्ट में जाएं, यहाँ I can't tell you the quality of the NGOs that are helping women, and not just women, irrespective of the gender. Help is available to the extent कि आपकी अपनी लैंग्वेज में आपको हेल्प मिलती है। इंडियंस तो हर जगह है, हर एनजीओ के साथ इंडियंस एसोसिएटेड है, तो आपकी अपनी, अगर आपको लैंग्वेज, विच इज नॉट एन इशू एनीमोर बाय द वे, लाइक लैंग्वेज बैरियर इज अ thing of the past, it doesn't matter. So most of the people, women are very very well apt at all this in today's day and age. हम इतने connected है, social media, everything is there. आप आपसे खुद नहीं आप कर पा रहे तो आप एनजीओ के पास जा सकते हो, बट अगर आपको एनजीओ पे भी नहीं जाना है तो भी, अगर ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन है जहां आपको इमरजेंसी लाइक हेल्प चाहिए, यू ऑल यू हैव टू डू इज कॉल द पुलिस, 911, कॉल देम। कॉल करते ही पुलिस आएगी, वो अपनी इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेशन करेगी, और अगर उन्हें लगता है कि कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस यहाँ हुआ है, तो एटलीस्ट न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में तो देयर इज मैंडेटरी अरेस्ट, मतलब आप मना भी करोगे तो भी पुलिस जो अब्यूजर है उसको अरेस्ट करके कोर्ट लेके जाएगी। वहां बेल मिले ना मिले दैट इज सेपरेट, बट बेल के दौरान आप अगर आप चाहते हैं तो आपको एक रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर मिल जाता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर, जिसके बेस पे आप जहां रह रहे हैं यू विल कंटिन्यू टू लिव देयर, जो अब्यूजर है उसको कहीं और जाके रहना पड़ेगा। ऑल्सो उस दौरान ऐसा नहीं है कि वो चाइल्ड सपोर्ट पे नहीं करेंगे, उस दौरान ऐसा नहीं है कि वो घर का रेंट पे करना बंद कर देंगे, तो वो सब कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो आपके सामने नहीं रह सकते। और ये इस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की जो अवधि है वो कुछ महीनों से 2 साल तक इतना मैक्सिमम होता है। उस दौरान आप अपनी कस्टडी फाइल कर सकते हैं, कस्टडी के लिए अलग से पैरेलल। और यूजुअली क्या होता है कि कोर्ट्स ना ये सब क्लब कर देते हैं, एक ही उसमें एक ही जज है हु विल ओवरसी ऑल दिस, तो उसमें एक तरफ उनका वो ट्रायल चलता है डोमेस्टिक वायलेंस वाला, जिसमें इफ दे आर प्रूवन गिल्टी वो अलग है, और दूसरा जो है वो कस्टडी ट्रायल है। तो अगर जो ये उन्होंने अब्यूज किया है वो इतना सीरियस नेचर का है, या बच्चे के सामने किया है, या बच्चा अफेक्ट हुआ है, तो जो मैं आपको नॉर्म बता रही हूँ ना, 50-50 कस्टडी, तब वो मदर या फादर की फेवर में, जो भी प्रेपरेटर है जिसने भी डोमेस्टिक वायलेंस किया उसके अगेंस्ट जाएगा, और जो विक्टिम है उसके फेवर में जाएगा। तो while the basic rule is 50-50 custody, that can be 60-70-80 इस तरह से split हो जाता है based on what the other person has done. तो अगर कोई यहाँ पे domestic violence face करता है, I'm not getting into whether they're saying the truth or not, I can't figure that out, but what I know for a fact is कि returning to India with the child, वहां जाके cruelty, ये domestic violence और sexual abuse और dowry harassment लगाने से बहुत बेटर है कि आप ये सब यहीं कर लें। इट विल बी सो मच इजियर ऑन योर ओन किड। हम कहते तो है ना बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बट मुझे लगता नहीं है कि चाइल्ड को तो कोई देख भी रहा है। इट्स मोर अबाउट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेरेंट, स्पेशली इफ द पेरेंट इज ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड इज अ वुमन। ऑल बेट्स आर ऑफ देन। Let's talk about some proactive measures. Today, you're an attorney, and I think your guidance would be really, really meaningful. If you're seeing some red flags, and I'm talking about whether as a father or as a mother, I think anybody can face this. When there is a situation of conflict within the marriage, both of the partners are Indians but are staying in the US, and either of the parent, starts abusing the other partner, and is dominating, and also starts giving sign that, if you raise your voice, then I'm going to take away the kids to India. What are the proactive measures that either a father or a mother can take if such threats are forthcoming? The best and the most effective measure that they can take is, with the help of expert evidence presented to the court, get a court order preventing the child being removed from a certain county or a state in the United States. Once you get that order, and it's like usually you would need expert evidence for this, that's the kind of work we do. Expert evidence से क्या होता है कि the things that they are saying
फैक्ट्स अलग है, बट लॉ क्या कहता है, दैट इज आवर जॉब टू टीच द कोर्ट, नॉट टीच बट एजुकेट द कोर्ट अबाउट इट, बिकॉज कोर्ट्स डोंट नो इंडिया में क्या सिस्टम है, कोर्ट्स डोंट नो, दे कांट टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ स्टफ दैट्स गोइंग ऑन इन इंडिया, दे नीड somebody either licensed there or an expert in this field to educate them about it. Once that is done, they can secure an interim order or permanent order depending on wherever they are in the proceedings with respect to the custody. उस ऑर्डर को लेके आप स्टेट डिपार्टमेंट, थ्रू योर अटर्नी यू कैन रीच आउट टू द स्टेट डिपार्टमेंट एंड गेट योर चाइल्ड एनरोल्ड इन द प्रिवेंट अबडक्शन लिस्ट. लाइक आई टोल्ड यू कि इंडिया, यूएस में कोई एग्जिट कंट्रोल्स नहीं है, कोई भी कभी भी कंट्री छोड़ के जा सकता है. लेकिन अगर आपके बच्चे का नाम यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रिवेंट अबडक्शन लिस्ट पे है, तो आई एम 100% श्योर कि जो टिकटेड डिपार्चर है, ticketed means commercial airlines, जो regular, I'm not talking about private, like किसी का अपना private plane है, I'm not talking about that. कोई कनाडा गाड़ी में बैठ के चले जाए, मैक्सिको गाड़ी में बैठ के चले जाए, all that is separate. But ticketed departure can be prevented. आपके consent के बिना वो बच्चा कंट्री छोड़ के नहीं जा सकता. सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इट एंड द ओनली वे, ऑनेस्टली, क्योंकि एक बार बच्चा इंडिया चला गया ना, सालों निकल जाते हैं दीपिका, दोबारा फादर को या मदर को वो बच्चा देखने को बहुत सालों बाद मिलता है, और सब कुछ वो जो प्रेशियस टाइम है आपके बच्चे के साथ वो निकल गया. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव द मोमेंट यू फील दैट देयर इज अ थ्रेट, और यू इट डजंट हैव टू बी वर्बल, it's just you pick on cues. स्टेट डिपार्टमेंट एक लिस्ट मेंटेन करता है रिस्क फैक्टर्स की abduction रिस्क फैक्टर्स, जिसमें अगर आपको लग रहा है कि दे आर सडनली अपनी जॉब छोड़ दी, या अपना घर बेचने के लिए रेडी हो रहे हैं, या कटिंग देयर टाइज ऑफ, और दे आर नॉट वेरी कल्चरली एसोसिएटेड विद द प्लेस, दे डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, blah blah, they suddenly start speaking very negatively about the country, all that. If you see any of it, and sometimes it's verbal, sometimes it's written, not everybody knows about it, but अगर कुछ भी आपके पास ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, और अगर कंट्री इंडिया जैसी है जिसने हेग साइन नहीं किया है, ऐसी और भी कंट्रीज, चाइना है, ब्राजील ने साइन किया है बट कंप्लायंट नहीं है, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू अदर कंट्रीज, बट या देयर आर सर्टेन अदर कंट्रीज व्हिच हैव एब्सोल्युटली रिफ्यूज्ड टू साइन इट. तो आपको फिर आपके पास यही चारा रह जाता है कि यू प्रिवेंट इट, एंड प्रिवेंशन इज डन थ्रू एक्सपर्ट टेस्टिमनी, सिक्योरिंग an order which prevents either the father or the mother or both parties to remove the child from whichever county that the child is living in without the permission of the court. तो फिर वो सिंपली बस आपको वो ऑर्डर स्टेट डिपार्टमेंट को देना है, आपके बच्चे का नाम उस लिस्ट पे आ जाता है, एंड देन एटलीस्ट टिकटेड डिपार्चर इज प्रिवेंटेड. अनदर थिंग दैट वी ऑफ्टन टेल आवर क्लाइंट्स, एंड इसका कोई 100% गारंटी नहीं है, बट यू कैन पुट अ ट्रैकर ऑन योर किड, लाइक ऑन इन हिज बैग और ऑन हिज शू, बट ऑल दिस कैन बी फिगर्ड आउट वेरी इजीली. लाइक everybody who's, if it is a planned abduction, people know about all of this. So yeah, best and legal stuff I told you already. All right. Let's come to children, and you made a very, very relevant point, that everybody is thinking about the parent and nobody is actually thinking about the child. I honestly feel even in India, I think the welfare of the child, though they say that they are only talking about or they are only concerned about welfare of the child, but predominantly we see that sometimes the priority is just the woman or the mother, and whatever hardships she faces or whatever emotional value she has been able to have on the judge, and that's taken care of. And I mean, for the example that I gave to you of Kaushalendra, I mean, that woman actually tutored her son to lie about sexual abuse by the father, and she still is enjoying the custody of that child. And it is horrendous, I guess. I mean, I don't know if that person is really really capable of giving or is actually taking care of the welfare of the child. I mean, this is the most disgusting thing one person can do. What are the impact on children that happens in such cases, Stutee, especially in international parental child abduction? Because no matter how much I love my country, let's accept the fact that we are still developing these countries that we usually greener pastures, as they call it, where people go. They go because the life is better over there. The opportunities are better over there. These countries are far, far ahead as compared to India. So a child being
born in that environment, being raised in that environment, and then suddenly being brought to India. I mean, I know of case where the mother did not even send the child to school after abducting the child to India for 2 years. Yeah, And I think I've heard of that case. Yeah. the court did not even pay any heed to it. So what is the welfare that we are actually talking about? But let's come to what are the challenges children usually face, and if you could talk about them, maybe some person will have some sense, not to do that to their own child. What are the challenges, problems do children face? And we can discuss. I mean, parental alienation is of course one thing. They're completely being detached from one parent. But what are the other societal challenges that children face who are victims of this? So, like if a child is old enough to realize that they're being abducted, that one of the parent is simply taking them out of the country, or like, they're sitting on a plane and leaving the country, and, like dad doesn't know or mom doesn't know. If the child is old enough to figure that out, the psychological impact of that alone is devastating. When the child has nothing against the parent, maybe the parents are fighting, but the child loves both the parents equally. They are going to school in a certain environment here, they have friends here, all they've known is the United States. पढ़ाई का लेवल बहुत अलग. India is very very ahead of its, like, the standards of education are like very very strict. US that way is very laid back. तो एकदम से उस बहुत laid back और warm environment से आप एकदम बहुत competitive environment में आ जाते हो. How are you going to cope up with that? Like, if I sometimes think of, like maybe I could figure out a way where my child could summer school in India, my biggest concern is that he's not going to be able to keep up with the kids in India who are so smart. Like, इतना प्रेशर रहता है हम पे. यहाँ के बच्चे नहीं समझ सकते वो चीज. तो लाइक एक तो आपने abduction, मैं नहीं ऐसा कह रही, इट इज चाइल्ड अब्यूज. मतलब इट इज अ stated fact in judgments in the US public policy, not just US, बहुत जितने ये जो कंट्रीज हेग को बहुत सीरियसली लेती है, सब मानती हैं कि चाइल्ड अब्डक्शन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. और उसी वजह से शायद वो जो डिफेंसेस हैं हेग अब्डक्शन के, 4-6 डिफेंसेस, उनको बहुत लिमिटेड तरीके से अप्लाई करने के लिए जजेस को कहा जाता है. द रीजन इज दिस कि a parent simply removing the child from one country should not be awarded कि भैया बहुत अच्छा काम किया, अब आप वहां जाके रह लो. तो that is the fact. But बच्चे को आप उस हिसाब से बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड हम कहते हैं. लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर हेग साइन, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हेग साइन कर लेते हैं, है ना. न्यूयॉर्क से बच्चे को दिल्ली लेके आए और हेग साइन था और कोर्ट ने फटाफट ऑर्डर कर दिया कि न्यूयॉर्क वापस जाओ. तो जब न्यूयॉर्क में कस्टडी ट्रायल होगा, वो भी तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कस्टडी ही, मतलब स्टैंडर्ड तो सेम ही है और फैक्टर्स भी सेम है. तो ऐसा नहीं है कि आप ही बेस्ट इंटरेस्ट देख रहे हो, मतलब वापस जाके भी वो बेस्ट इंटरेस्ट ही होने वाला है. हेग ये तो नहीं डिसाइड कर रहा ना कि फादर विल परमानेंटली हैव द किड. ऑल दे आर सेइंग इज रिटर्न द चाइल्ड सो दैट द कोर्ट्स देयर कैन डिसाइड इट. तो ऐसे में बच्चे की फुटबॉल बनती है बहुत मेजर. और कई बार पेरेंट्स के लिए, और ये तो डोमेस्टिक डिवोर्सेस में भी सच है, कि द किड इज basically a pawn. You can't get back on the other side through anything else. So you're like, अच्छा अब मैं ये दिखाता हूँ या ये दिखाती हूँ कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ. अपनी टसल में ना आप जो बच्चे के साथ करते हो. अभी there was a case where the one of the and I'm on purpose not being very specific, one of the parties had abducted the child to India. The other parent then went to India, nabbed the child, वहां से बच्चे को लेके नेपाल से, चाइना से वापस यूएसए आए. अब आप मुझे बताओ, बहुत मैं लीगैलिटीज में तो जा ही नहीं रही, बट अगर वो बच्चे की उम्र इतनी है कि उसे समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, will that kid ever be able to forget? कई बार they resort to bodyguards or like outside help. तो बच्चा नहीं समझ पाता है कि आप ये हो क्या रहा है, मुझे छीन क्यों रहे हैं. ये सारा जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, nobody is giving a shit, and it could be so dangerous when the child grows up and starts to blame one of the parents for the
अच्छा, फिर इमिग्रेशन इश्यूज भी रहते हैं। अभी बच्चा अगर अमेरिकन सिटीजन है तो एक टाइम तक ही वो इंडिया में रह सकता है, एंड उसका पासपोर्ट एक्सपायर होगा, दूसरा पेरेंट कंसेंट नहीं देगा पासपोर्ट के लिए, और बच्चे का स्टेटस क्या है? ओसीआई तभी है ना जब पासपोर्ट वैलिड है। अभी पासपोर्ट ही वैलिड नहीं है तो ओसीआई का भी आप क्या करोगे? ऐसे बहुत इश्यूज आते हैं। 18 साल के बाद बच्चा उसको अमेरिका के बहुत बीइंग अ सिटीजन उसको टैक्सेस पे करने हैं, बहुत कुछ करना है, लेकिन वो रहे इंडिया में रहे, उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा कि यू नो हाउ आई हैव टू प्रोसीड फर्दर विद दिस। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड भी बहुत इश्यूज रहते हैं जो रियलिटी में फैमिली लॉ में इतना प्ले नहीं करते, बट लाइफ में बहुत प्ले करते हैं आगे चल के। Although these human issues are very very complicated, but the case that you discussed, I've been very very privy to that case, and let me just tell you, Stuti, that this family tried their level best to fight the legal system in India as much as they could, and they fought for, I think, 6 years, if not less, and they tried to comply with each and everything that was being told to them, that was being asked of them. They went until the Supreme Court, and they tried their level best to go by the legal procedure. But eventually, when they realized that India just doesn't give a damn, is when they were, I think they took that step. But of course, everybody can have their own opinion about how right it was, how wrong it was. And there's no doubt that, the child invariably most of these cases is used as a pawn, and I think it is upon these two adults more than the courts or the laws or the Yeah, convention, anything. It is 100%. these adults who are not behaving responsibly at all, and sometimes it is just one person not behaving responsibly, and the other person is just pushed around to the corner to behave in a way that they do not want. But uh, uh, now, most of these kids right now who are under the realm of IPCA in India, Stuti, what is their, like you rightly said, कि उनका passport भी expire हो जाता है कुछ time बाद, obviously. So, are they staying in India illegally? What is their resident shell status basically? Or the mothers, and I'm very candidly saying mothers because I think 99% it is the mothers who bring the child and not the father. So, do they then completely get a new passport, or have you seen cases where there are any lies told to get new documents done? What is the child status in India when a child is brought like that? तो एक बात तो क्लियर है कि अगर मदर ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो वापस नहीं जाएंगी, तो उस केस में कोई इमिग्रेशन लॉ नहीं है जो फोर्स करके बच्चे को, अगर उनका अमेरिकन पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, कि अब तो आप यहाँ रह नहीं सकते, आपका पासपोर्ट नहीं है, वापस जाओ। वो होता नहीं है। हाँ, ऑन पेपर्स इट इज देयर, बट इन रियलिटी दैट विल ऑलमोस्ट नेवर हैपन। तो ऐसे में क्या होता है कि हमने सुना है, आई पर्सनली मैंने किसी को खुद नहीं विटनेस किया, बट मैंने सुना जरूर है कि फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाते हैं ताकि इंडियन पासपोर्ट मिल जाए। You have to give up the American citizenship. It is not these things. Like, I'm not an immigration attorney, but I know that it's easier said than done to give up things without the consent of the other parent. तो obviously फिर आप कुछ तो forge करोगे ना डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। अगर आपको कंसेंट नहीं मिल रहा तो you will make the consent up। और जितना मुझे समझ आता है, most of the passport and related authorities in most of the countries, all they say is कि we are buying what you're saying, we agree कि आपके पास ये कंसेंट है, कोई केस होगा तो तुम देख लेना, फिर हम पे मत उस टाइम पे डालना। तो इन सच केसेस द बेस्ट foot forward would be for the left behind parent to write an official email or a letter to the concerned authorities in India and tell them कि मैं consent नहीं दे रहा हूँ। तो अगर आपके पास ऐसी कोई एप्लीकेशन आती है, यू शुड नो कि मेरा कंसेंट नहीं है। तो एटलीस्ट एक ना लेवरेज मिल जाती है फ्यूचर के लिए कि अगर उसके बाद भी पासपोर्ट मिल गया, दैट इज अंडर नोबडीज हैंड्स, बट यू कैन देन टेक द अथॉरिटीज टू टास्क कि मेरा लेटर आपके पास था। तो दैट इज वन ऑफ द वे। और जो यहाँ यूएसए में इट्स कॉल्ड CPIAP प्रोग्राम, चाइल्ड पासपोर्ट इशुएंस अलर्ट प्रोग्राम। आप उसमें अपना नाम, अपने बच्चे का नाम डाल दीजिए, तो अगर उनका पासपोर्ट इश्यू होगा तो आपके पास एक अलर्ट आएगा कि ऐसे एप्लीकेशन फाइल हुई है आपके बच्चे के नाम की, डू यू कंसेंट।
तो until and unless दूसरे पेरेंट के पास एक कोर्ट ऑर्डर है, फाइनल कोर्ट ऑर्डर सेइंग कि मेरे इस पेरेंट के पास 100% लीगल कस्टडी है बच्चे की, कि दे आर द सोल डिसीजन मेकर विद रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड, तो वो पासपोर्ट फिर इशू नहीं होगा जब तक आप कंसेंट नहीं करते। यूएस का तो बहुत क्लियर कट, लाइक एक तो ना आई ऑफ्टन जोक विद माई फ्रेंड्स कि हम बचपन में सुनते थे कि दादी नानी कहती थी कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, उतनी तो इस देश की पॉपुलेशन है यार, तो कंपेयर नहीं कर सकते दो चीजों को। इट्स लाइक यहाँ पे सब कुछ बहुत स्ट्रीमलाइंड है, इट्स एवरीथिंग कैन बी वेरी इजीली डन। और इंडिया में, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग कोर्ट्स, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, बट just the sheer population, you can't figure many of the, there's no set laws ना, मतलब हर चीज या तो केस लॉ पे बेस्ड है, स्टैट्यूटोरियली कुछ लिखा नहीं है। अब हेबिस कॉर्पस है, लोग सोचते हैं मैं हेबिस कॉर्पस डाल दूंगा, 80% हेबिस कॉर्पस मुझे नहीं लगता है कि वो क्लियर होगी, क्योंकि ना बहुत फैक्टर्स है जो आपके हाथ में ही नहीं है। अगर इंडिया जाके अब पेरेंट बोल सेक्सुअल अब्यूज लगा दो, गया चूल्हे में हेबिस कॉर्पस, क्योंकि वो सेक्सुअल अब्यूज के बाद ना सिंपैथी ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। अच्छा, फिर हम, और आई थिंक दैट वी आर गोइंग टू टच अपॉन दिस, द डिफरेंसेस बिटवीन द टू सिस्टम्स की यूएस और इंडिया, जो वैसे अगर मैं बोलने लगूँ तो आई थिंक पूरा दिन भी कम है, लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 या 3 बहुत ग्लेयरिंग डिफरेंसेस की बात करूँ ना, तो सबसे मेन है कि यूएस में ना कुछ भी जेंडर बेस्ड या रिलीजन बेस्ड ऐसा नहीं है। जो फैमिली लॉ है वो यूनिफॉर्मली अप्लाई करता है सब पे। बिगमी अगर नहीं अलाउड है तो नहीं अलाउड है, इट्स नॉट लाइक एक रिलीजन को है एक को नहीं है, दोनों को नहीं है। सिमिलरली टेंडर ईयर्स डॉक्ट्रिन की यंग बच्चे का ख्याल माँ ज्यादा रख सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पहले इन्होंने गिव अप कर दिया, इनको नहीं चाहिए। तो अभी इंडिया का क्या है, जैसे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, 18वीं सदी का कोई वो प्रोविजन है जो इंग्लैंड ने गिव अप कर दिया है, बट हम नहीं कर रहे। तो ये जो, और हालांकि दैट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, बट अगेन द एप्लीकेशन इज एज रिटन, इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, the application mostly is gender specific. You tell me, in today's day and age, can you be forced to stay married to somebody? No, you shouldn't be. Like, you want a divorce, you get a divorce, it's really that simple. But तो जो सबसे ग्लेयरिंग डिफरेंस है ना, जो इंडिया और मेरे को बिल्कुल समझ, एंड इट मेक्स माय ब्लड बॉयल एट टाइम्स, की ये जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज नहीं होने चाहिए। आई एम नॉट प्रो वुमेन, आई एम नॉट प्रो मेन, आई एम जस्ट अगेंस्ट वेरी एंटी स्टूपिड लॉज, लाइक जो जेंडर बेस्ड हैं और जिनकी एप्लीकेशन आज की डेट में अभी कोई उनका उतना वैल्यू रह नहीं गया है। तो या आई डोंट नो व्हाट द क्वेश्चन वाज, बट आई नो दैट दिस इज अ फैक्ट। You're absolutely right, Stutee. I think पूरा दिन बीत जाएगा if we talk about the way laws are being, implemented in India. Like I said, a woman lying about rape in today's time is more a myth. A woman will never lie about rape. This is the common legal understanding that a lot Yeah. of judges have while they are scrutinizing a rape allegation, and they're but I think it's just become so easy for a vengeful woman to go and now cry foul about rape. So all of these laws really, really need an overhaul. And I think, unfortunately, he said this after his tenure was completed. But former Chief Justice of India, Mr. Chandrachud, also said that our family laws just need a complete overhaul. Who will do the overhaul? It's the young generation that is getting completely clueless. दीपिका, मुझे ना ये चीज कोई अगर एक्सप्लेन कर दे तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा, जो बेसिक गटरल चीज है कि हम इतना लड़ धड़ के किसी कंट्री में जाने के लिए, मतलब अभी कोई हमें इनविटेशन तो भेज नहीं रहा है ना, खुद जाके हम कहीं जाके सेटल होते हैं, सब कुछ है। मैं बहुत लेमैन टर्म्स में आपसे बात करती हूँ, अगर हम किसी के घर में जाके रहते हैं तो हम उनके लॉज, उनके रूल्स फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? हम यही, अगर हम किसी के घर जाके रह रहे हैं हम उनके रूल्स फॉलो करते हैं। अगर हम किसी नई सोसाइटी में घर खरीदते हैं तो हम सोसाइटी के घर रूल्स फॉलो करते हैं। तो ऐसा क्या हो गया है कि हमें अभी भी मतलब ये सोचना पड़ता है कि नहीं, हमें ये डिस्क्रिप्शन तो हम इंडियन कोर्ट्स को देंगे? दैट इज नॉट लॉजिकली करेक्ट। व्हेन यू वांट, अच्छा H1B का आपने सुना होगा कि स्किल्ड वर्कर्स, भैया इनको ग्रीन कार्ड जल्दी क्यों नहीं मिलता है, ऐसा है वैसा है। एक तरफ आप वो कर रहे हो, दूसरी तरफ आपको लॉज नहीं चाहिए अमेरिका के, लेकिन आपको वो अक्षय कुमार का डायलॉग है ना नमस्ते लंदन में, कि
साफ सुथरा लंदन में रहना है, पाउंड्स में पैसे छापने हैं, बट एक अंगूठा आपने गेटवे ऑफ इंडिया में दिया हुआ. इट इज एग्जैक्टली दैट. एंड आप ये मुझे जैसे दो टाइप के इमिग्रेंट्स होते हैं. एक तो जो हाईली स्किल्ड है, आके उन्होंने बहुत एजुकेशन लोन्स लिए हैं, यहाँ आके सेटल हुए हैं, बहुत पैसा लगता है रितिका, और पैसे से ज्यादा बहुत मेहनत, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स यू गिव योर लाइफ टू मेक अ लाइफ हियर. एक तो वो कैटेगरी है. एक और कैटेगरी है जो है अनडॉक्यूमेंटेड पीपल. लाइक they'll come either by crossing the border or they'll come through tourist visa and never return. That is a separate category and a very big one at that. You should read their immigration applications. The way they will paint India, oh my god, like हमें तो पॉलिटिकल पार्टी जीने नहीं दे रही थी, हमारे साथ ऐसा अत्याचार हुआ, हम तो रह नहीं पाते, लाइक हम सड़क पे जा रहे थे और हमें मर्डर कर दिया, मेरी मम्मी का रेप कर दिया, ऐसा हो गया वैसा. ये सब होता है. आई रेड इट माई सेल्फ. ये सब करके झूठ, इंडिया की इतनी बेइज्जती करके आप वहां असाइलम लेते हो. एक बार असाइलम मिल जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद आपकी अब गाड़ी नहीं चलती है, तो आप इंडिया वापस आके देन यू स्टार्ट बैशिंग अमेरिका कि अमेरिका के कोर्ट्स तो हमारा साथ नहीं देते, दे आर पार्शियल, दे आर इंडियंस को लाइक दे नॉट गिविंग अस आवर ड्यू, दे आर बीइंग अनफेयर. दो रीजंस. एक तो पहले आपने दोनों ही देशों की बहुत अपने मतलब के हिसाब से बेइज्जती कर दी. सेकेंडली, मोस्ट ऑफ दीज केसेस बोथ पार्टीज आर इंडियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन. तो मुझे बताओ वो अनफेयर किसके साथ? वो दोनों ही इंडियंस है यार, तो वो व्हाई विल दे बी अनसिंपैथेटिक? One thing before, if we are about to end, I'll very important point that I want to make. Yes, there is help available for domestic violence victims here. Yes, there are systems in place that can be implemented when you don't have to. And I don't think we touched upon it. We will. कि अगर आपको child abduction नहीं करनी है तो आपके पास options क्या हैं? Having said all of that, have a nest money, have emergency funds with you. ये एनजीओ जो मैं बता रही हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं, लेकिन दैट्स नॉट ऑल दैट यू गोइंग टू फेस. देयर इज अ हेल लॉट ऑफ एक्सपेंस अदर देन just surviving in this country is so expensive. तो अगर आप कभी अच्छे वक्त में अपना वो जो emergency fund को lose कर दोगे ना, you will regret it at the time when you need it the most. तो just because I'm saying कि NGOs available हैं, just because I'm saying कि pro bono help मिल जाती है, doesn't mean कि आप बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और आप बोलो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. You will pay through like nose for that. तो अगर आप मैरिज से रिलेटेड इशू की वजह से अमेरिका या किसी भी कंट्री जा रहे हो ना, दो चीजें करो. एक, आप इंटरनेशनल फैमिली लॉ अटर्नीज या कोई भी रिस्पेक्टेड अटर्नी से कंसल्ट कर लो, अपने राइट्स को जान लो. अगर आप ये वेबसाइट एक्सटर्नल अफेयर्स, एनआरआई वुमेन सेल, इन वेबसाइट्स पे जाओ ना, जो उन्होंने एडवाइस लिखी है वो बहुत अच्छी है, बट वो एडवाइस सिर्फ इंडिया में इंप्लीमेंट होती है. दैट दे डोंट कवर कि यूएस में क्या होगा या अमेरिका या यूके में क्या होगा, कनाडा में क्या होगा. यू नीड टू नो दैट. तो होता क्या है कि आप सिर्फ उतनी वो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. आप वो उतना सा देख के यू थिंक कि हाँ अगर कुछ होगा मैं तो आ जाऊंगी. देयर इज सो मच मोर यू हैव टू कंसिडर. तो वो स्टेप लेने से पहले ना, मतलब प्रिवेंट, आई बिलीव इन प्रिवेंशन. आई डोंट बिलीव कि आफ्टर में तो फिर कुछ भी होता है. यू शुड नो कि अगर मैं यहाँ अमेरिका में आके बच्चे पैदा करूंगी, यू शुड नो कि इवन इफ मैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर मेरी शादी हुई है पर अब मैं इतने सालों से वहां रह रही हूँ, मे बी इंडिया में पैरेलल डिवोर्स जुरिस्डिक्शन है, जस्ट बिकॉज यूर हिंदूज आपकी शादी वहां हुई, और मे बी इवन मुस्लिम्स आपकी शादी इंडिया में हुई. दैट डजंट मीन कि अमेरिका में डिवोर्स जुरिस्डिक्शन नहीं है. आप वहां पे अगर उनकी रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट को मीट करते हो, देयर इज नो वे कि अमेरिकन कोर्ट अपना डिवोर्स जुरिस्डिक्शन जस्ट गिव अप कर देगा until and unless there are other pressing circumstances. और जहां तक रही चाइल्ड कस्टडी जुरिस्डिक्शन, नो कोर्ट विल गिव इट अप, क्योंकि ये उनका इनहेरेंट राइट और ड्यूटी, बोथ, इट इज बोथ ऑफ द थिंग्स कि उनको बच्चे को प्रोटेक्ट करना है. तो देयर इज हार्डली एनी कोर्ट दैट विल से कि अच्छा अब तुमने अबडक्ट कर लिया तो अभी वो कोर्ट को हम गिव अप कर देते. दैट 99.99% that will not happen. So these issues, and I'm not being critical, but these issues are not addressed on the websites, the official websites. And believe me, I've tried to reach out to them a couple of times, not a lot of times, maybe like 2 to 3 times, but stoic silence, kuch jawab nahi mujhe mila. But that needs to be updated. A lot of information on the NRI official websites, FAQs,
they're they're nothing but very, to a lay person honestly, आज से 10 साल पहले जब मुझे इंटरनेशनल फैमिली लॉ नहीं पता था, मैं भी अगर वो पढ़ती तो मुझे भी एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती ना कि अच्छा मेरे तो ये राइट्स है, आई एम वेरी गुड टू गो, बट यहाँ आके पिक्चर बहुत डिफरेंट होती है. दैट इज अनदर थिंग. ऑलवेज हैव मनी एंड ऑलवेज बी हैव इनफ मनी टू गेट प्रॉपर लीगल कंसल्टेशन. मतलब मैं नहीं कह रही कि आप बहुत भारी भारी रिटेनर भर दो, बट 1 घंटे की कंसल्ट, आप कोई शॉपिंग मत करो यार, जस्ट स्पीक टू समबडी, पे फॉर देयर टाइम एंड यू शुड फिगर आउट कि क्या है. अगेन, शादी करने से पहले फिगर आउट कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ का इमिग्रेशन स्टेटस वहां एग्जैक्टली है क्या. कहना बहुत आसान है, वो आपको बहुत कहानियां सुना सकते हैं. वेरीफाई इट कि वो वाकई ही, अभी कोई किसी ने असाइलम फाइल किया हुआ है, असाइलम पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा. आई एम टॉकिंग टू स्पेसिफिकली टू द पेरेंट्स हियर. आप अपने बच्चे को वाकई ऐसी शादी में डालना चाहते हैं जहां स्पाउस का ही नहीं पता कि वो कितने टाइम उस कंट्री में रहेगा. जस्ट डोंट सी कि अरे न्यूयॉर्क लंदन ये सब मत देखो, इसके आगे बहुत कुछ है. सो दैट्स अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू से. Stuti, very, very quickly, because I don't know how long can we continue this, but I haven't got any notification as of now. Very quickly, if a person becomes, their child is taken away by the other parent, and that parent comes to India. US में तो आप जो कर सकते हो आप कर सकते हो, but what are the immediate things that one can take recourse to in India? Very quickly. हेबस कॉर्पस इज द क्विकेस्ट मीन्स. लाइक जैसे ही आपको पता चलता है कि बच्चा आपकी नॉलेज के बिना इंडिया में है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन फाइंडिंग आउट कि मैं ऐसा वो जो इधर उधर की नुस्खे है ना, क्योंकि इंडिया में कोई रिटर्न फॉर्मेट नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप जो आपको फॉलो करना है. द क्विकेस्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव इज दैट यू रीच द कंसर्न हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट वेर एवर द चाइल्ड इज एंड आस्क देम दैट माई चाइल्ड हैज बीन टेकन विदाउट माई परमिशन 2 days ago, 3 days ago, maybe 10 days ago, but इसको don't let it converted into months. The longer you take, वो आपके अगेंस्ट जाएगी बात. So that's the first thing. And उस केस में क्या होता है, दूसरे पेरेंट को ना फैक्ट्स बिल्ड करने का टाइम नहीं मिलता कि वो फटाफट जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कस्टडी पिटिशन लगा दें. उतना टाइम भी मत दो, क्योंकि एक बार उन्होंने कस्टडी पिटिशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा दी, बहुत बार कोर्ट बोलेगा कि यू सॉर्ट इट आउट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, अभी ये हमारे से बाहर है. सो हेबिस कॉर्पस इज द क्विकेस्ट वे टू फिगर इट आउट, बट you need very very intelligent counsel for that. Like if somebody is not doing habeas corpus, it's their first case, or if they're simply going on Google to figure it out ki ye kya hai, that will eat away at your time, your very very precious time. So it might be a tad bit expensive to get somebody who's like, there are very very few attorneys who really know this, but there are good attorneys in India. Reach out to them and just have a consultation if nothing else, so that you know and believe in your counsel. Don't with Indian clients, one thing that I see is that they'll consult with you, then they'll go to 10 different counsels, they'll get confused और अपना ही केस खुद खराब कर लेते हैं. तो acting fast is the key, and habeas corpus is the quickest mean to do it. I also want to add, if you don't want to abduct a child and you want to figure out what your options are in the US, कि आपकी शादी नहीं चल रही है, but you want to figure out कि मुझे इंडिया जाना है और मेरे को abduct नहीं करना, तो मैं क्या करूं. उस केस में बहुत नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं कि एक कस्टडी ट्रायल के दौरान पति पत्नी मीडिएट करके एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि वाइल अब 2 कंट्रीज है तो 50-50 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक बच्चे ने स्कूल भी जाना है, सब कुछ करना है. तो इसको इंटरनेशनल चाइल्ड रिलोकेशन कहते हैं. वो आप कोर्ट की परमिशन से रिलोकेट करते हो अगर हस्बैंड या वाइफ मीडिएशन के थ्रू ना माने, वो बोले नहीं मुझे बच्चा यही चाहिए. इंटरनेशनल चाइल्ड रिलोकेशन कुछ केसेस में अलाउ की भी जाती है, जहां पे ऐसे फैक्टर्स हैं कि मदर ये कन्विंस कर पाए कि देखो मेरी यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, बट मैं इंडिया जाऊं तो मेरे को ये जॉब मिल रही है, या वन ऑफ द पेरेंट्स इज अ ड्रग एडिक्ट, और वाकई ही वो सब चीजें हैं कि वो बच्चे पे ध्यान भी नहीं दे रहे, पैसे भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं. ये फैक्टर्स कुल मिला के कई बार इंटरनेशनल चाइल्ड रिलोकेशन में चलते हैं. सेकेंड इज इंटरनेशनल चाइल्ड विजिटेशन. तो उसमें क्या होता है, प्राइमरली एक पेरेंट बच्चे को रख लेता है अपने पास, लेकिन सब्सटैंशियल विजिटेशन राइट्स आर गिवन टू द अदर पेरेंट. लाइक पूरी समर्स, यहाँ पे 3 महीने की छुट्टी होती है, पूरी समर्स आप या तो बच्चे को दूसरी कंट्री में भेज दो या आप उसको यूएसए ले आओ. सिमिलरली विंटर्स में भी ऐसा स्केड्यूल हो सकता है. तो abduction is not the only solution. आप दोनों बैठ के solution निकाल सकते हो. That's the other thing that I wanted to add. Stuti, going to get into generic discussion as long where we can.
I think, or probably will sum this up. Do you think India should sign the Hague? I am And do you done. think Of course, of course. do you मतलब think ये that तो women's rights activists and feminists should think about the impact on the child and not just think about the arguments that have predominantly been given that these are women who are victims of domestic violence who are fleeing to India, and that's why we should not sign it at all? Or do you think that that's in the best interest of both the husband and wife or mother and father? हेग अबडक्शन में ना एक डिफेंस है, ग्रेव रिस्क ऑफ हार्म। ग्रेव रिस्क ऑफ हार्म को कंट्रीज लाइक जापान, जापान भी हेग अबडक्शन नहीं साइन करना चाहता था, लेकिन उन्होंने एंड में क्या किया, ग्रेव रिस्क ऑफ हार्म को ना एक्सपैंड कर दिया, जिसमें ये डाल दिया कि अगर औरत के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है सीरियस, तो मतलब तब भी हम बच्चे का रिटर्न ऑर्डर नहीं करेंगे, ठीक है। समथिंग लाइक दैट कैन बी डन, बट एट द सेम टाइम अगर इंडिया साइन नहीं करता है ना, तो और ये बात 2009 की लॉ कमीशन रिपोर्ट में नोट की गई है, अगर आप हेग अबडक्शन नहीं साइन करते हो तो बहुत बार तो पेरेंट यहीं से प्रिवेंट ही कर देगा ना, बच्चे को कभी इंडिया आने ही नहीं देगा इसी बेस पे कि आपने साइन नहीं करी, एंड इट हैपेंस। तो नंबर वन। नंबर टू, इंडिया की जो लीगल इमेज, एंड आई एम सॉरी टू से, in most developed legal systems, India is considered as a safe haven for international parental child abduction. It hurts my heart when I hear that na ki matlab, but it is true also. What do I do? Like I wrote a very detailed report to PM Modi, and I put down all these points ki you should consider these. It is the time for India to reconsider it. It's not going anywhere with this पहली बात तो मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, ग्रेव रिस्क ऑफ हार्म डिफेंस है, और ऐसा भी नहीं है कि कई केसेस में इंडिया रिटर्न करता भी, कुछ लिमिटेड केसेस है जिसमें वो रिटर्न भी करता है। तो जब आप ऑलरेडी वो सब कर रहे हो जो आप अदरवाइज भी करते, व्हाई नॉट साइन इट एंड जॉइन द कंट्रीज। अब 100 और कंट्रीज ने साइन किया है। अब बिंदल कमेटी में देयर वाज अ comment that I feel should have not been there, something about western pressure कि हमें western pressure पे bow down नहीं करना चाहिए। second was कि हम ना अपनी sovereignty sign कर देंगे अगर हमने ये treaty sign कर दी। आप इतनी और treaty sign करते हो, अपनी sovereignty sign कर देते हो। secondly, अगर वेस्ट से इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों इंडिया वो देश है जहां इंडियन डायस्पोरा इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड? तो ये तो हिपोक्रेसी की भी हिपोक्रेसी हो गई ना। सच इट हैज नथिंग टू डू विद नेशंस, इट हैज नथिंग टू डू विद वेस्ट। ये जो कोट एंड कोट बातें हैं ना, ये इज जस्ट टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम द मेन मुद्दा। 9 out of 10 countries where Indians go have signed the treaty. The only countries that haven't is the Middle East, जो ये दुबई और यूएई वगैरह इन्होंने नहीं करा है, बाकी सब कंट्रीज ने करा है। आप चाहते हो कि इंडिया पे एक वो धब्बा लगा रहे कि ये सेफ नहीं है। बिंदल कमेटी ने एक बिल प्रपोज किया था कि हम हेग अबडक्शन कन्वेंशन डिस्पाइट इट्स नोबल इंटेंट नहीं साइन करते, बट हियर्स अ बिल दैट वी आर प्रपोजिंग कि ये पैन इंडिया हम अप्लाई करेंगे फॉर चाइल्ड अबडक्शन केसेस। द प्रॉब्लम विद दैट बिल इज कि पहली बात तो वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, 4-6-7 साल होते आए। अगर हो भी जाए तो इट इज पैन इंडिया। अगर आप उसके अंडर कोई ऑर्डर दे भी देते हैं, foreign country is under no obligation to pay any heed to that order. लेकिन अगर आप हेग कन्वेंशन को साइन करते हैं, then you become treaty partners. उसके बाद both the countries have to value each other's custody orders, which also reminds me, by the way, even though India and USA have not signed the Hague Convention, अगर इंडिया से बच्चा यूएसए आए ना, तो यूएसए courts are required by law to pay heed to an Indian return order जो फाइनल है, और वो बच्चे को फिर भी वापस करेंगे until and unless there are very very few exceptions जहां पे वो दूसरी साइड ये प्रूव कर पाए कि इंडियन लॉ जो है वो यूएस पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, या मतलब बहुत बहुत ज्यादा माइन्यूट एक्सेप्शंस है जो इंडिया में इंडिया से रिलेशन में अप्लाई नहीं होते। ऐसे रेयर ही केसेस होंगे। आई मीन आई डोंट थिंक सो इवन देयर वुड बी केसेस, आई मीन so child here and then flee away with the child to US. I they mean, happen like like obviously जैसे अभी इंडिया तो अमेरिका का सेकंड हाईएस्ट इमिग्रेंट ग्रुप है। there are roughly about 5 million Indians which are documented, which we know of in the United States. जहां तक मेरी रिसर्च जो मैंने बहुत 1-2 साल हो गए मुझे लास्ट जब मैंने किया था, there were less than 2000 American people in India. Okay, तो मतलब the divide is major, but again interestingly enough मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। नंबर्स इज डेफिनेटली ज्यादा तो यूएसए से इंडिया आते हैं, बट इंडिया से भी यूएसए जाते हैं, ऐसा नहीं है केसेस। okay, Stutee, what are major conflict
causes or reasons that you would say जो इंडिया से खासकर टेक के आई गेस बहुत कपल्स हैं वहाँ पे आई थिंक दे वुड बी फॉर्मिंग क्लियरली अ मेजॉरिटी what are the conflict points really why are the marriages of these people who have done tried so hard to settle down in a foreign country and then they fight like cats and dogs what are the common conflict points that you are seeing in family disputes in the US between NRI couples the biggest is अब इंटरनेशनल देखो एनी मैरिज इज हार्ड है ना आज की डेट में वैसे ही मैरिजेस बहुत हार्ड है add an international element to it and all bets are off because what happens is that suddenly you from a system where you have domestic help very easily available right like हर चीज के लिए हमें इंडिया में help है and human labor is relatively much not relatively much cheaper in India यहाँ पे क्या है once you come here एक तो the work pressure is tremendous on top of that घर की जो ड्यूटीज है वो दोनों को इक्वली करनी है अभी एक तो बहुत टसल उससे होता है that the couples who are young parents don't find that kind of support until and unless they are paying for it तो paid help is something else but इंडिया में जैसे दादी नानी ये सब नहीं रहता है ना यहाँ पे तो वो एक बहुत एडेड प्रेशर यंग पेरेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर है यहाँ पे आपको अपना जॉब भी करना है आपको पैसे भी कमाने हैं घर की मॉर्गेज भी पे करनी है बट एट द सेम टाइम कोई बर्तन धोने नहीं आ रहा है यू हैव टू डू दैट ऑल्सो और अगर आप हेल्प अफोर्ड कर सकते हो आप करते हो बट कई बार ईगो टसल आ जाता है जैसे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दे मेकिंग गुड मनी इट बिकम्स अबाउट कंट्रोल हु विल कंट्रोल तो उसमें ना और तो कोई तरीका है नहीं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अमेरिका में एवरीथिंग इज 50-50 अच्छा एक और चीज अगर ये औरतें अबडक्ट करके इंडिया जाती है ना तो एक वो अपना फाइनेंशियल क्लेम बहुत मेजरली लूज करती है जो यूएसए में जब अपॉन डिवोर्स ना एक तो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर rules are very strong they're not a joke you can't lie on them they're very strong secondly financial settlement upon a divorce it basically means division of assets जो भी आपकी प्रॉपर्टी है जो आपने शादी के दौरान बनाई वो या तो 50-50 या as close to 50-50 as possible डिवाइड होती है अभी जो मदर है जिसने अबडक्ट कर लिया इंडिया ले गई पेरेंट ने यूएसए से कोर्ट ऑर्डर लिया कि मेरे बच्चे को वापस लाओ मदर ने वो वापस नहीं किया शी इज हेल्ड इन कंटेम्प्ट चाइल्ड सपोर्ट तो वो फिर भी सिक्योर कर लेगी बट देयर हैव बीन केसेस जहां उसे स्पाउसल सपोर्ट मना कर दिया गया क्योंकि she was an abductor she didn't listen to the worst thing you can do is defy a court order तो चाहे वो इंडिया का कोर्ट हो चाहे वो यूएसए का कोर्ट है अगर आप उनको नहीं सुन रहे हो ना they don't like it तो अगर आपने वो किया और आपने अपने वो सारे पैसे आपका फाइनेंशियल स्टेक जो है ना अगर आपका घर अब प्रॉपर्टी है ना वो लोकेटेड तो यूएसए में है आप जो मर्जी इंडिया से ऑर्डर ले आओ वो एनफोर्स तो यही होगा पहली बात इंडियन कोर्ट्स यूएस के घर को डिवाइड करने में जाएंगे ही नहीं बिकॉज इट इज नॉट विद इन देयर जुरिस्डिक्शन जो फाइनेंशियल ऑर्डर्स हैं चाइल्ड सपोर्ट यस बट लाइक आई टोल्ड यू मैंने स्पाउसल सपोर्ट केसेस कुछ देखे हैं जिसमें कोर्ट्स हैव रिफ्यूज्ड बिकॉज द मदर वाज द इनिशियल वन हु अबडक्टेड द चाइल्ड तो ये बात उन मदर्स को बहुत जरूरी पता होनी चाहिए जो कुछ सालों से यहाँ पे हैं क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो आई और आते ही चली गई दैट इज समथिंग एल्स बट अगर आप कुछ सालों से यहाँ पे हो तो आपने एक सब्सटेंशियल नेटवर्थ चाह के ना चाह के बिल्ड कर ली होती है क्योंकि आप घर की मॉर्गेज दे रहे हो आपकी गाड़ियां हैं आपने चलो घर नहीं खरीदा आपने कुछ वैसे आपका जॉइंट अकाउंट है कुछ भी है तो थिंक अबाउट ऑल दैट लाइक अबडक्टिंग इज वेरी इजी और ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई फिर आपको प्लेट में लाके वो चीजें दे रहा है जो आप क्लेम करना चाह रहे क्योंकि अगर हस्बैंड ना आए फिर क्या करोगे दूसरी चीज इमिग्रेशन स्टेटस अगर आप अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हैं अगर आप उनके डिपेंडेंट हैं तो भी आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप केसेस इमिग्रेशन केसेस के थ्रू अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस पा सकती हैं लेकिन एंड आई थॉट दैट आई रेड इट मे बी वन ऑफ द क्वेश्चंस कि कोई औरत ऐसे झूठ बोल के इमिग्रेशन स्टेटस लेती है वो मैंने अपने पर्सनल उसमें नहीं देखा है बट इट्स नॉट सो इजी टू फूल ऑल्सो लाइक ऐसा नहीं है कि आपने हाई तौबा मचाई और कुछ भी हो जाएगा दे माइट ट्राई बट इट हैज टू बी हेविली सब्सटैंशिएटेड तो ही सेड शी सेड नहीं चलता सिमिलरली अगर आप पुलिस को कॉल कर दो कि डोमेस्टिक वायलेंस हुई है 911 दे कॉल्ड द पुलिस आएगी वो अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस करेगी तो अगर उस दौरान दे फिगर आउट कि इट्स मोर अ शो लाइक ये हुआ नहीं है जितना आप शो कर रहे हो तो ऐसा भी होता है that पुलिस सिंपली रिटर्न्स विद अ वार्निंग टू द अब्यूजर दोनों को भी कई बार वार्निंग मिलती है कि ये देखो मत करो अदरवाइज नेक्स्ट टाइम इट विल बी डिफरेंट तो
People might try, but that doesn't fly here. That's what I'm trying to say. It's majorly, you think it's ego tussles, it's the difficulty of the lifestyle over there, it's money, it's chores, it's responsibilities. um, बट लेकिन केसेस जो इंडिया में लगते हैं वो तो फिर सारे डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के ही लगते हैं, फिर उसके बाद ये सारी बातें तो हाँ नहीं, वो यहाँ पे दे डोंट इवन नो व्हाट डाउरी इज यार, मतलब यहाँ तो इनको एक्सप्लेन करना इट इज सो डिफिकल्ट ना, कभी एज एन एक्सपर्ट की इट इज बैफलिंग टू देम कि कोई ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, मतलब ये क्या है दे डोंट गेट इट। बट हाँ, तो डाउरी वगैरह यहाँ तो प्रोविजंस ही नहीं है ना, तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। और सेकेंडली, इंडिया जाते हो, आप किसी वकील को मिलते हो, तो ये एक सेट पैटर्न है। मैं सारे वकीलों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही, बट कुछ वकील हैं जो आपको कह देंगे कि आप ये केसेस लगा दो मैडम, कभी पैर भी नहीं रख पाएगा इंडिया में। तो ये सब होता है, और उसकी वजह से यार पता है सब कुछ खत्म हो जाता है। आपका यहाँ की ग्रीन कार्ड प्रोसेस जो चल रहा होता है, उसमें एक धब्बा, यू नो लाइक यू हैव टू टिक अ बॉक्स where they say have you ever been charged with a serious offense in another country. So once you do that, everything is like, and you can't lie on those forms, at least not in the US. तो ये सारी चीजें हैं। ये बेसिकली टैक्टिक है, प्रेशर टैक्टिक बन जाता है। सबको पता है कि वो 498 में एंड में वो अक्यूज भी नहीं होगा, बट वो इतना लंबा चलेगा, किसने देखा तब तक क्या होगा। सो दैट्स इट। So, Stutee, my last question, and if there's anything that you would want to add, you can obviously add. So, इंडिया में जैसे ऐसे पैकेज चलता है कि डाउरी 498 भी लगा दिया, डीवी भी लगा दिया, 125 भी लगा दिया, मेंटेनेंस भी लगा दिया. How is it in US? If a couple has a matrimonial dispute, if they are in litigation, how many cases are usually fought between them? How are the custody laws there? How does maintenance happen? मतलब कैसे होता है वहाँ पे? तो कस्टडी तो इज क्लियरली द नॉर्म इज कि दोनों को बराबर 50, बोथ पेरेंट्स हैव इक्वल राइट्स टू देयर चाइल्ड। डिसीजन मेकिंग, जो लीगल कस्टडी जिसे कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स से रिलेटेड लीगल डिसीजन मेकिंग है, एजुकेशन हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रैवल, ये 3 मुद्दे हैं जो बेसिकली कवर किए जाते हैं। उसमें दोनों का कंसेंट चाहिए। एक सोलली डिसाइड नहीं कर सकता कि कोई जैसे कोई मेजर मेडिकल प्रोसीजर है, तो यू कैन डिसाइड दैट विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर। किस स्कूल में जाएगा, फॉरेन कंट्री जा सकता है कि नहीं, ये 3 सोल 50-50 until and unless one of the parents is able to show to the court with convincing evidence. And I'm saying this is a very high standard. It's not like India की बोल दिया तो हो गया। You have to be able to substantiate it कि ये मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। उस केसेस में बहुत बार, and I'm not just talking about NRIs, regular people, they would go to ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज पे जाके सेक्सुअल अब्यूज का केस लगा देते हैं, और देन देयर विल बी अ सेपरेट इंक्वायरी इनटू दैट। मे बी ड्यूरिंग दैट इंक्वायरी द फादर और द मदर इज नॉट अलाउड टू मीट द चाइल्ड, बट वंस इट इज फाउंडेड अनसब्सटैंशिएटेड, फिर जो क्लेमिंग पेरेंट है ना, उसका स्टेक बहुत अफेक्ट करता है, इस वजह से कि उसने झूठी ऐसी कोई कंप्लेंट लगाई। दैट इज वन। डिवोर्स का क्या है कि डिवोर्स के 3 सब पार्ट्स है। एक तो सिंपल पीस ऑफ पेपर सेइंग दैट दिस मैरिज इज हियरबाय डिसॉल्व्ड बिकॉज द पार्टीज आर नॉट गेटिंग अलोंग। कोई ग्राउंड नहीं चाहिए, कुछ नहीं प्रूव करना है, अडल्टरी, क्रुएल्टी, कुछ नहीं। यू वांट अ डिवोर्स, you get it, but that's just one Irretrievable component. breakdown of marriage, I guess that's called, right? I'm sorry. Irretrievable breakdown of marriage. Which now in India through some case law judgments they're starting to recognize it, but it's not a statutory ground in India. तो yeah, that is what happens. वो एक पीस ऑफ पेपर है। उसके अलावा 2 कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंशियल और कस्टोडियल। फाइनेंशियल है कि कपल की क्या प्रॉपर्टी रही है, दे आर डिफरेंट, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन बॉटम लाइन फिर भी यही है कि या तो वो 50 जो भी कपल की प्रॉपर्टी एज ऑफ द डे ऑफ मैरिज उन्होंने इकट्ठे करी है, माइनस द फैक्ट अगर उन्होंने प्री नप्चुअल अग्रीमेंट साइन किया, वो बहुत डिटेल्ड है, दैट requires another 1 hour. बट अगर उन्होंने प्री नप्चुअल अग्रीमेंट नहीं साइन किया है, तो जो भी उनका है वो कायदे से 50-50 डिवाइड होना चाहिए दोनों में। इट कैन टेक द बेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट कपल्स, what they do is they sit with their attorneys, they figure out a marital separation agreement between the attorneys and themselves. Once they've come to terms with it, they simply submit it to the court, and within a day it is sorted. If you want to contest it, बहुत रेयर होता है, बहुत लोगों के पास इतना पैसा नहीं है दीपिका, यहाँ ट्रायल्स बहुत एक्सपेंसिव है।
किसके पास इतना टाइम, पैसा और स्ट्रेस लेने का वो मादा है कि वो कोर्ट में जाके 2 साल, तो कई बार 2 साल, 1-2 साल लग जाते हैं, तो दे डोंट वांट टू गो इनटू ट्रायल. दैट इज वन थिंग. तो वो एमएसए बोलते हैं उसे, उसमें दोनों कस्टोडियल और प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज सॉर्ट कर लिए जाते हैं. वो टू एंड फ्रो होता है दोनों लॉयर्स में, कुछ इसके पॉइंट्स मानते हैं, कुछ उसके पॉइंट्स मानते हैं. मीडिएशन है. Nobody wants to go to court and very few cases would actually go into a trial. और अपील तो है ही नहीं. मतलब जैसे इंडिया में है ना, हर सेकंड चीज के लिए आप एपेलेट कोर्ट्स पहुंच जाते हो, वो यहाँ पे बहुत रेयर है, बहुत बहुत रेयर है. और सुप्रीम कोर्ट तो आउट ऑफ क्वेश्चन. मेंटेनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है वहां पे? किसका मेंटेनेंस? मेंटेनेंस? इंटरिम एंड फाइनल. लाइक एलिमनी का ऐसा है कि कोई कई स्टेट्स में एक सेट रूल, मतलब एक कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से. यू गो पुट इन योर डिटेल्स, तो उसमें आपको रफली पता चल जाता है आपको कितना मेंटेनेंस मिलेगा, कब तक मिलेगा. In my experience, it has to do with the length of the marriage. So अगर जैसे आपकी 15 साल की मैरिज है, तो 3 years का 1 साल मिलता है. So like if it is a 15-year marriage, तो आपको 5 years तक एलिमनी भी मिलेगी, in addition to डिविजन, प्रॉपर लाइक फाइनेंशियल डिविजन ऑफ द एसेट्स जो परमानेंट एंड में होता है, उसके अलावा. और वो सिर्फ औरत को नहीं मिलती, वो तो इंडिया में भी लाइक यू नो वो आदमी को भी मिल सकती है. जो भी whoever is making more will be liable to pay that. और इसमें ये सारा भी फैक्टर इन करता है कि बच्चे किसके साथ रह रहे हैं. तो अगर आई एम अर्निंग मोर बट द किड इज लिविंग विद मी, तो वो डिडक्ट हो जाएगा उससे. मतलब देन माय व्हाटएवर आई एम रिक्वायर्ड टू पे टू द अदर साइड वुड बी लेसर. Okay, so the last question, a little जो मेरे से लोग पूछते हैं कि बताओ क्या करना है, तो I think Indian families, especially those who are staying abroad, are still in that halo that Indian women are this, Indian women are बहुत ही ज़्यादा kind and things like that, and they come to India, get married, and then that sort of becomes the main ground on how they can be then accused of 498 ADV और सारी की सारी फिर family implicate हो जाती है. So, what would be your guidance to NRI men, if they're planning to get married and if they're planning to get their bride from India, what would your advice be to them? Deepika, like I don't understand why would you want to do that, right? Like in today's day and age, एक तो मैंने बता ही दिया, यहाँ 50 लाख इंडियन यहाँ है भाई, यहीं से ढूंढो. वहां जाने की जरूरत नहीं है. बट अगर तुम्हें फिर भी वो करना है, ये ना, इसमें बहुत सोसाइटल एंगल्स आ जाते हैं. जस्ट होल्डिंग माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग. बट देयर इज ऑल्सो लाइक, अगर आप परमानेंट अभी आप यूएस सिटीजन हो गए हो, आप वहीं रहते हो, आपका इंडियन डोमिसाइल भी मोस्ट लाइकली अब नहीं रहा है, तो गेट अ प्रीनअप ना. मतलब यहीं पे आप प्रीनअप कर लो. तो That's actually something that I was very intrigued about asking. So, for example, NRI man gets married to an Indian woman. Their marriage happens in India. He proposes to sign a prenuptial agreement in the US, and the woman at that time agrees also. Ki, okay, chalo, let's sign prenup. Would it have any validity if the woman then just turns around and not obey? It is a very loaded question. The only no prenup is 100% foolproof. First of all, like every prenup in the world can be challenged in the court of law. The chances that it can be successfully challenged, and I'm talking about New York, like United States. India में तो वैसे ही prenups की कोई validity है नहीं. तो न्यूयॉर्क में वो तब उसे चैलेंज कर सकती है अगर वो बोले कि प्रीनप साइनिंग के दौरान उसे नहीं पता था वो क्या साइन कर रही है. शी डिड नॉट हैव अ लॉयर नॉट जस्ट इन द यूएस, बट जिस पर्टिकुलर स्टेट में जाके वो रहने वाले हैं शादी के बाद. वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस स्टेट में ये लोग शादी के बाद रहने वाले हैं. उसका अपना इंडिपेंडेंट लॉयर होना चाहिए. उस अटर्नी का दूसरी साइड, दूसरे को दूसरा चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक ही अटर्नी दोनों का साइन कर दे, वो नहीं होता है. सो इंडिपेंडेंट अटर्नीज फॉर बोथ द साइड्स. अगर लैंग्वेज इशू है, कई बार ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुझे इंग्लिश में पता ही नहीं चला मैंने क्या साइन कर दिया, तो यू फाइंड अ लॉयर हु कैन ट्रांसलेट इट फॉर यू, who's first of all a lawyer who's licensed in India or maybe also in the US, who can translate this for you and tell you कि तुम क्या sign कर रहे हो. I'm talking about the steps that a person who wants to protect their assets should take in order
कि बाद में फिर वो कोई पार्टी जाके कोर्ट में ये ना बोले कि मुझे तो मैंने अंडर प्रेशर साइन किया, मुझे नहीं पता था. सो टेक ऑल द स्टेप्स. वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए प्रीनप की. जिस टाइम पे आप साइन कर रहे हो, मेक अ वीडियो ऑफ इट लाइक प्रॉपर टू सबमिट टू द कोर्ट कि दे न्यू दे वर साइन. नोटरी खड़ा है, लॉयर्स खड़े हैं, ट्रांसलेटर खड़ा है, सबको पता है कि क्या हो रहा है. सेकेंडली इसमें प्रीनप में ना चाइल्ड कस्टडी रिलेटेड आप कुछ नहीं डाल सकते. इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट्स हैव नथिंग टू डू विद चाइल्ड कस्टडी. तो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि बच्चा कहाँ रहेगा, बच्चा कब होगा, बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी, बच्चा फॉरेन कंट्री जा, कुछ भी नहीं. Prenuptial agreements are basically to secure your finances in the event of a divorce. Secondly, to figure out कि अगर डिवोर्स होगा तो मैं कितना दूंगा दूसरी पार्टी को. अच्छा, और वो प्रीनप्स भी बहुत इजीली चैलेंज हो जाते हैं जिसमें आप अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं दे रहे. लाइक यू वर सेइंग कि मैरिज डिवोर्स हो रहा है या बहुत कम दे रहे हैं. इतना कम दे रहे हैं कि कोर्ट की कॉन्शियस बोले. अच्छा, यहाँ पे तो वैसे भी ना बहुत ज्यादा ऐसी चीजें अपॉन अ डिवोर्स, विमेन, not just women, everybody is entitled to proper and just division, right? तो बहुत बार ऐसे होता है कि इंडिया में क्या है, उसको मेंटेनेंस बोलते हैं और मेंटेनेंस का स्कोप बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन डिवीजन ऑफ एसेट्स नहीं है. इंडिया में कोई डिवीजन ऑफ एसेट्स नहीं होता. तो इस केस में आपको ये जरूर कवर करना है कि आप उतना तो जो लेजिटिमेटली उसका बनता है वो कंफर्टेबल रहे, उतने प्रोविजंस उसमें होना चाहिए. अगर नहीं होगा देन द कोर्ट विल फाइंड इट इनवैलिड. अगर आप बेसिकली दूसरी साइड की एक तरह से एडवांटेज ले रहे हो, दैट वोंट फ्लाई. प्रीनप्स का मतलब ये नहीं है ना कि आप दूसरी साइड को बिल्कुल खाली कर दो. दैट्स नॉट दैट द पर्पस ऑफ अ प्रीनप. No, obviously. Thank you so much for joining, Stutee. Thank you so much for taking out your time. And I think it was, I'm sure people who are dealing with these cases or people who are planning to get married are in US and want to get married in India, especially men. I think this would be definitely very, very informational for them. And I hope some people can take a leaf out of it on the do's and don'ts and get to know the laws better and the situation that they can get into better. Thank you so much for taking out your time, Stutee, and all the best. I love the articles that you write and continue with the good job. And hope to catch up sometime again on another discussion. Sure, Deepika. It was a wonderful and a very pleasurable time for me. Thank you for having me. I feel very honored to be a part of this show, honestly. Thank you. Thank you so much, Stutee. Take care. So that was Stutee Nag, an international family law attorney practicing in the US. I hope you enjoyed this conversation. Please do subscribe to my channel. And if you have any queries regarding international parental child abduction, you can reach out to Stutee Nag. She is available on all social media platforms. We'll ask her if she is comfortable sharing her email ID and we'll drop it in the description. Thank you so much for watching our content. Please do subscribe if you haven't. And thank you so much once again.